مریم ایک غریب درزن تھی جو اپنی محنت سے اپنے خاندان کا پیٹ پال رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی سلائی کی دکان چلاتی تھی اور پورے محلے میں اس کے سلائی کیے گئے کپڑوں کی خوب تعریف تھی۔ اس کی سلائی اتنی بہترین تھی کہ گاؤں کے چودھری کی بیوی بھی اپنے کپڑے اس سے سلواتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کے سلائی کیے ہوئے کپڑے تیار تھے، لیکن چودھری کی بیگم نے انہیں لینے کے لیے کسی کو نہیں بھیجا۔ گھر میں اس کے والد کی طبیعت بہت خراب تھی اور اسے ان کی دوائیاں لانی تھیں۔ وہ کپڑے لے کر خود حویلی پہنچ گئی۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ بیگم صاحبہ ابھی تک نہیں آئی تھیں۔ وہ 1 گھنٹے تک انتظار کرتی رہی، پھر آخر کار چودھرائن سیڑھیوں سے نیچے اترتی دکھائی دیں۔ چودھرائن نے لال ساڑی پہن رکھی تھی، باری برکم مالا گلے میں جھول رہی تھی اور وہ بڑے ہی ناز و نخروں سے چلتی ہوئی آ رہی تھیں۔ انہوں نے ترچھی نگاہوں سے مریم کی طرف دیکھا اور طنز بھرے لہجے میں بولی، اس بار بہت دیر کر دی تم نے ساڑیاں سلنے میں۔ مریم گھبرائی اور فوراً صفائی دی، بیگم صاحبہ میں نے تو 2 دن پہلے ہی سلائی پوری کر لی تھی، سوچا کہ آپ کی نوکرانی آ کر لے جائے گی، لیکن جب وہ نہیں آئی تو میں خود ہی لے آئی۔ چودھرائن نے غصے سے ہونٹ بھینچے اور بڑبڑاتے ہوئے بولی، اس رضیہ کی بچی کو تو آنے دو، اسے پوچھتی ہوں۔ پھر وہ ایک ایک کر کے کپڑے کھول کر دیکھنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کے ماتھے کے بال کچھ کم ہوئے اور تعریف کرتے ہوئے بولی، سلائی تو تم نے بہت اچھی کی ہے، دیکھوں گی فٹنگ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ مریم نے راحت کی سانس لی، اسے لگا کہ اب اسے اس کی محنت کی مزدوری مل جائے گی، لیکن تبھی حویلی کے ایک کونے سے شور و غل اٹھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا ہنگامہ ہو گیا ہو۔ پھر حویلی کے سارے ملازم اسی طرف دوڑ پڑے، کسی کے ہاتھ میں موٹا ڈنڈا تھا تو کسی کے ہاتھ میں لاٹھی۔ چودھرائن بھی بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور چوکیدار کو بلا کر پوچھا، کیا ہوا؟ چوکیدار گھبرائی آواز میں بولا، بیگم صاحبہ ابھی ابھی مالی نے حویلی کے باغ میں ایک بہت بڑا ناگ دیکھا ہے، وہ ایک درخت سے لپٹا ہوا بیٹھا تھا، شکر ہے کہ مالی نے اسے دیکھ لیا، جلدی ہی اسے پکڑ لیں گے۔ اتنا سنتے ہی حویلی کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ مریم بھی گھبرا گئی، لیکن اسے اپنی مزدوری کی فکر تھی۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، بیگم صاحبہ میری مزدوری دے دیں، مجھے جانا ہے۔ چودھرائن نے ایک نظر اس پر ڈالی اور لاپرواہی سے بولی، ہاں میں رضیہ کے ہاتھ پیسے بھجوا دوں گی، اور بھی کپڑے سلوانے ہیں تم سے۔ مریم کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ وہ مایوس ہو کر حویلی سے نکلی اور پڑوس کی خالہ ذکیہ سے ادار مانگنے چلی گئی، لیکن خالہ نے اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور غصے سے بولی، ہم نے گھر میں کوئی پیسوں کی فیکٹری نہیں کھول رکھی ہے جو ہر بار تمہیں پیسے دیں۔ لیکن ان کی بڑی بیٹی سکینہ باجی بڑی مہربان تھی، انہوں نے مریم کو ادار پیسے دے دیے۔ مریم نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور جلد واپس کرنے کا وعدہ کیا۔ گھر آ کر اس نے ابا کی دوائیاں خریدیں اور تھوڑی سبزی بھی لے آئی۔ ابا چارپائی پر لیٹے تھے اور چھوٹا بھائی روہیل ٹیوشن سے لوٹ آیا تھا۔ یہ تینوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اماں کا انتقال کب کا ہو چکا تھا اور ابا معذور ہو چکے تھے۔ اگر مریم کے ہاتھ میں سلائی کا ہنر نہ ہوتا تو شاید وہ بھوکے مر جاتے۔ رات کو جب وہ ابا کو حویلی میں ناگ دکھنے والی بات بتا رہی تھی تو ان کے چہرے پر عجیب سا تناؤ آ گیا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، ایک دن تو اسے لوٹنا ہی تھا، آخر کب تک وہ بدلہ لیے بنا رہ سکتا تھا۔ مریم چونکی اور بولی، ابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا نے گہری سانس لی اور بولے، اگر انہوں نے اسے مار دیا تو وہ پھر لوٹے گا، اچھاداری ناگ کبھی نہیں مرتا، 100 سال بعد پھر سے جنم لیتا ہے۔ مریم ہنس دی، ابا آپ بھی نا، یہ سب بس قصے کہانیاں ہیں۔ لیکن ابا کے چہرے کی گمبھیرتا اسے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ شام ہوتے ہی موسم اچانک بگڑ گیا، تیز آندھی اور مٹی کے لال غبار سے کچے آنگن کی دیواریں کانپ اٹھیں۔ مریم کو ڈر لگنے لگا، اس نے فوراً روہیل کو اندر بلایا اور ابا کی چارپائی کمرے میں بچھا دی۔ رات کافی ہو چکی تھی جب اچانک دروازے پر کافی زور کی دستک ہوئی۔ مریم چونک اٹھی، اتنی رات کو کون آ سکتا تھا؟ اندر سے ہی آواز لگائی، کون ہے؟ باہر سے ایک باری برکم آواز آئی، مسافر ہوں، زخمی حالت میں ہوں، ایک رات کی پناہ چاہیے۔ مریم جانتی تھی کہ ان کا گھر مسافروں کے لیے راستہ تھا،
मगर इतनी रात को किसी अजनबी को बुलाना ठीक होगा? मगर जब उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़े नौजवान को देखकर उसकी सांसें थम गईं। हरी हरी आंखें, सुर्ख सफेद रंगत और एक खूबरू शहजादे जैसी शख्सियत, लेकिन उसका हाल बुरा था। जिस्म पर जगह जगह गहरे जख्म थे, कपड़े खून में सने हुए थे। मरियम घबरा कर बोली, आपको इतनी चोट कैसे लगी? वो बोला, लोगों ने मारा है, कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, लेकिन मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी दहशत थी। मरियम ने दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर आने दिया। वो सेहन में मौजूद सतून के साथ टेक लगाकर बैठ गया। मरियम सोच रही थी कि अब्बा को जगा दे। फिर ख्याल आया कि उनकी तबीयत ख़राब है। क्या आपके पास कोई कपड़ा होगा? उसने पूछा। मरियम के पास सिर्फ नए कपड़े थे जो उसे सिलाई के लिए दिए गए थे, मगर उसे अपना एक पुराना दुपट्टा याद आ गया। उसने वो दुपट्टा निकालकर उसे दे दिया। उसके हाथ जख्मी थे, इसलिए मरियम खुद उसकी मरहम पट्टी करने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतने करीब से उसने कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा था। वो चुपचाप बैठा था, जैसे अपना सब कुछ हार बैठा हो। मरियम ने उसे खाने का पूछा तो वो बोला, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मरियम ने जल्दी से रात का बचा हुआ खाना लाकर दे दिया। उसे देखकर वो सोचने लगी कि इतना खूबरू नौजवान गांव में न जाने किसके घर आया होगा। उसकी आंखें किसी आम इंसान की नहीं लग रही थीं। वो बोला, आपको मेरी वजह से आधी रात को तकलीफ हुई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ भागा हूँ, वरना वो लोग मुझे मार डालते। मरियम परेशान हो उठी। आपके दुश्मन इसी गांव के हैं? उसने सर हिलाया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, मगर आप मुझ पर एक एहसान कर सकती हैं। जब तक मेरे ज़ख्म ठीक ना हो जाएं, मुझे इस घर में रहने दें और किसी को मेरे बारे में मत बताइएगा। मरियम ने बिना सोचे कहा, आप जितने दिन चाहें यहाँ रह सकते हैं, हमारे घर में कोई आता जाता नहीं। वो तशक्कुर भरी निगाहों से उसे देखता रहा और फिर ज़मीन पर लेट गया। शायद थकान हद से ज़्यादा थी। मरियम भी उसकी तरफ देखते देखते सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो घबरा गई। घर में उस अजनबी का नामो निशान तक नहीं था। उसने तो कहा था कि वो कुछ दिन क़ियाम करेगा, फिर अचानक कहाँ चला गया। यही सोचते हुए वो अब्बा और रुहेल के लिए नाश्ता तैयार करने लगी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। जब उसके अब्बा ने अचानक उसे आवाज़ दी, उसने चाय का प्याला रखा और उनके पास चली गई। अब्बा के चेहरे पर हैरानी थी। ये सेहन में अजीबोगरीब निशान कैसे हैं? अब्बा ने गंभीर लहजे में कहा। मरियम ने उनकी निगाहों की सीध में देखा तो सच में फर्श पर अजीब से निशान थे। उसने अनजान बनते हुए कहा, अब्बा न जाने किस चीज़ के हैं, आप ही बताइए, आप ज़्यादा तजर्बेकार हैं। अब्बा ने गहरी सांस ली और बोले, ऐसे निशान तो खेतों में दिखते हैं जहाँ नागों का बसेरा होता था। लगता है यहाँ से कोई नाग गुजरा है। अब्बा की बात सुनकर मरियम के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल वो हंसने लगी। अब्बा, नाग हवेली में था, यहाँ नहीं। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बा ने संजीदगी से कहा, डरा नहीं रहा बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। ये निशान मुझे नागों के ही लगते हैं। मरियम ने उनकी बात को हल्के में लिया, लेकिन उसके दिल में कुछ सवाल उठने लगे। वो दिल ही दिल में किसी और के बारे में सोच रही थी। आखिर वो कौन था? कहाँ चला गया? काश वो दोबारा लौट आए और वो उसका नाम पूछ सके। इस बेचैनी के बीच उसने पड़ोस की खाला की बेटी की शादी के लिए कपड़े सिलने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद खाला अपने कपड़े लेने आईं। उन्होंने मरियम को ध्यान से देखा और कहने लगी, तुझे तो सारी जिंदगी कमारा ही रहना पड़ेगा बेटी। मरियम हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। खाला ने ठंडी सांस भरी। देख, एक तरफ तेरा बाप माजूर है, घर में खाने को कुछ नहीं, तेरा छोटा भाई अभी बच्चा है, ऐसे में तेरी शादी कैसे होगी? मरियम ने धीमे लहजे में जवाब दिया, खाला, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं, मैं अपने अब्बा और भाई की जिम्मेदारी उठा लूंगी, यही मेरे लिए काफ़ी है। खाला ने उसके सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुझे हिम्मत दे बेटी, लेकिन तुझे देखकर रहम आता है। मरियम ने उनकी बातों पर कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। उसे इस तरह की बातें सुनने की आदत हो चुकी थी। शाम में रुहेल ट्यूशन से लौटा और कहने लगा, बाजी, ट्यूशन वाली फीस मांग रही थी। मरियम ने उसकी तरफ देखा और उसे बहला कर कहा,
1-2 दिन में फीस मिल जाएगी। उसे चौधराइन पर गुस्सा आ रहा था। उसने अभी तक नौकरानी के हाथ पैसे नहीं भिजवाए थे। शायद उसे फिर से जाना पड़ेगा। रात के वक्त जब वो कपड़े सिलाई कर रही थी, तभी उसके पीछे से एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज आई, कैसी हो तुम? वो चौंक गई। उसने गर्दन घुमाई और देखते ही उसके होश उड़ गए। वही नौजवान उसके सामने बैठा था। मरियम घबराई हुई बोली, तुम अंदर कैसे आए? उसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। दरवाजा खुला रह गया था। मरियम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो रुहेल को ताकीद की थी कि दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर दे। घबराते हुए उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तुमने तो कहा था कि तुम कुछ दिन यहीं रहोगे, फिर कहाँ चले गए थे? मरियम ने पूछा। नौजवान हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? मरियम को उसकी बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद उसने उसकी बेचैनी को बांप लिया था। उसने धीमे लहजे में कहा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही चला गया था। अगर इस घर में मुझे किसी ने देख लिया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मरियम उसे देखते हुए बोली, क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? नौजवान ने हाँ में सर हिलाया। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाए तो मरियम ने बिना कुछ कहे अब्बा के लिए रखा हुआ दूध लाकर उसे दे दिया। उसने देखा कि वो दूध इस तरह पी रहा था जैसे उसे उसकी सख्त जरूरत थी। दूध खत्म करके उसने खाली प्याला लौटाते हुए कहा, तुम बहुत मेहरबान लड़की हो। मरियम उसकी बात सुनकर चुप रही, मगर दिल ही दिल में बहुत कुछ चल रहा था। वो उससे पूछने लगी, तुम्हारे दुश्मन कौन हैं? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नौजवान ने मरियम की बात को टालते हुए कहा, नहीं, मुझे अपना बदला खुद लेना है, बस थोड़ा वक्त चाहिए। मरियम उससे बातें करने में इतनी मसरूफ थी कि उसे अब्बा की आवाज़ सुनाई ही ना दी। मरियम, मरियम बेटी, इधर आओ। अब्बा की आवाज़ आई। मरियम घबराकर उठी और अंदर चली गई। अब्बा कहने लगे, बेटा, इतनी देर से देख रहा हूँ, बाहर बैठकर किससे बातें कर रही हो? तुम्हारी आवाज़ तो साफ सुनाई दे रही थी। मरियम का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सहन में झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो कहीं चला गया था। जल्दी से खुद को संभालते हुए उसने कहा, अब्बा, किसी से नहीं, आपको वहम हुआ होगा। अब्बा बेचैनी से बोले, नहीं, मैंने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुम्हारे सामने बैठा है। मरियम ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि इन्हें कोई वहम हुआ है। जब अब्बा सो गए तो वो फिर सहन में आई, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसे दुख हुआ कि वो बिना बताए चला गया। सुबह जब मरियम नाश्ता बना रही थी, तभी अब्बा के चिल्लाने की आवाज़ आई, मरियम, इधर आओ बेटी, देखो, आज फिर वैसे ही निशान हैं। मरियम बाहर आई तो देखा वही अजीबोगरीब निशान सहन में फैले हुए थे। अब्बा घबराते हुए बोले, मरियम, तुमने तो कहा था कि हवेली में नाग दिखा था, मगर अब तो ऐसा लग रहा है कि वो जिंदा है और हमारे गांव में घूम रहा है। अब्बा की आंखों में डर था, लेकिन मरियम के चेहरे पर सिर्फ खामोशी थी। मरियम और उसके अब्बा के दरमियान अजीबोगरीब बातें होने लगी थीं। अब्बा का यकीन था कि हवेली में जो नाग देखा गया था वो अभी भी जिंदा है और पूरे गांव में घूम रहा है। ये सुनकर मरियम परेशान हो गई और कहने लगी, अब्बा, वो सांप तो हवेली के मुलाजिमों ने मार दिया था, लेकिन अब्बा को इसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसी दिन मरियम ने अब्बा से कहा, चौधराई ने अभी तक मेरी सिलाई के पैसे नहीं भिजवाए हैं। मुझे सकीना बाजी के पैसे वापस करने हैं। मैं हवेली जा रही हूँ। उसने रुहेल का खाना बनाकर रख दिया और पैदल ही हवेली की तरफ चल पड़ी। रास्ता दुश्वार और सुनसान था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जबकि चारों ओर हब्स फैली हुई थी। मरियम ने पलट कर देखा तो हैरान रह गई। वो उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा मरियम को बेचैन कर देती थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, जहाँ तुम जाओगी वहाँ मैं भी पहुँच जाऊँगा। मरियम ने उसे सवालिया नजरों से देखा और बोली, तुम हवेली क्यों नहीं जा सकते? क्या वहाँ किसी से कोई दुश्मनी है? उसने सर हिला दिया और बोला, जल्द ही तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन जब तक सच्चाई सामने आएगी हो सकता है कि मैं इस गांव में ना रहूं। मरियम ने घबरा कर कहा, खुदा ना करे तुम हमेशा इसी गांव में रहो। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन वो जल्दी से हवेली की तरफ बढ़ गई। जैसे ही हवेली पहुंची, चौधराई ने उसे देखकर कहा, मैं तुम्हारे पैसे देना भूल गई थी।
آج کل حویلی میں بہت پریشانیاں چل رہی ہیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھی تھی اور رضیہ کو آواز دی، رضیہ جاؤ میرے کمرے سے پرس اٹھا لاؤ۔ رضیہ نے مریم کو غصے سے دیکھا اور جب مریم باہر نکلی تو پیچھے سے بول پڑی، تجھے اب بھی سکون نہیں؟ حویلی میں اتنی پریشانیاں ہیں اور تو اپنے پیسے لینے آ گئی؟ مریم نے تمتماتے ہوئے کہا، شرم کیسی، میں محنت کر کے اپنا گھر چلاتی ہوں، ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں۔ رضیہ پھر تانے دیتے ہوئے بولی، یہاں تو چودھرائن کو اپنے بیٹے اور شوہر کی پڑی ہوئی ہے، پورا خاندان خطرے میں ہے۔ چودھرائن بار بار کہتی رہتی ہیں کہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ 3 دن سے حویلی میں کسی نے کچھ نہیں کھایا۔ مریم یہ سن کر اور بھی پریشان ہو گئی۔ آخر ایسی کون سی آفت آ گئی تھی کہ حویلی کے لوگ کھانے تک سے دور ہو گئے تھے۔ جب وہ گھر پہنچی تو دیکھا کہ چاچا کرم دین ابا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ حویلی کے ملازم تھے اور اکثر ابا سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ دونوں دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے۔ مریم نے سنا کہ چاچا کرم دین کہہ رہے تھے کہ کل بہت بڑے سپیرے کو بلانے والے ہیں۔ وہ 7ویں گاؤں میں رہتا ہے اور 90 سال کا ہو گیا ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے وہیں بتا دیتا ہے کہ ناگ کہاں چھپا ہے۔ مریم یہ سب سن رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی۔ ابا کہنے لگے، برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے، انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ 20 سال بعد وہ پھر لوٹے گا اور تباہی مچائے گا۔ وہ دونوں کوئی گہری بات کر رہے تھے لیکن مریم کو اس میں شامل نہیں کیا۔ دوسرے دن خبر پھیلی کہ سپیرا گاؤں میں آ چکا ہے۔ پورا گاؤں اس ناگ کو ڈھونڈ رہا تھا جو حویلی میں گھس آیا تھا، جسے مارنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ زخمی ہو کر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ نہ تو حویلی میں تھا اور نہ ہی گاؤں میں اس کا کوئی سراغ مل رہا تھا۔ اسی وجہ سے چودھری نے سپیرے کو بلوایا تھا۔ آدھی رات کو جب مریم بستر پر لیٹی تھی تو اسے صحن میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ وہ گھبرا کر باہر آئی اور جو دیکھا اس سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ نوجوان کونے میں سہما ہوا بیٹھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مریم حیران رہ گئی۔ تم اندر کیسے آئے؟ اس نے پوچھا۔ لڑکا گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، میں دیوار کود کر آیا ہوں، اگر ایسا نہ کرتا تو وہ لوگ میری جان لے لیتے۔ مریم اسے دیکھتی رہی۔ وہ بار بار اس سے ملنے کیوں آتا تھا؟ کیوں اس کا دل اس کی موجودگی سے بے چین ہو جاتا تھا؟ مریم نے اس سے اس کے زخموں کے بارے میں پوچھا۔ لڑکا دھیمی مسکراہٹ سے بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم بہت خوبصورت ہو، بالکل میری نگینا جیسی۔ یہ سن کر مریم چونک گئی۔ نگینا کون تھی؟ اس نے پوچھا۔ لڑکے کی ہری آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ وہ میری محبت تھی، تمہاری آنکھیں بالکل اسی جیسی ہیں، تمہیں دیکھ کر بس اسی کی یاد آتی ہے۔ مریم کے دل میں مایوسی اتر آئی۔ اس کا مطلب ہے وہ پہلے سے ہی کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ وہ سوچنے لگی، میں تو بس ایک غریب درزن ہوں اور یہ اتنا خوبصورت نوجوان، اسے تو کسی شہزادی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، تو کہاں چلی گئی تمہاری نگینا؟ لڑکے کی سانس گہری ہو گئی۔ کاش وہ زندہ ہوتی، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ مریم کو محسوس ہوا کہ وہ نگینا سچ میں بہت خوش نصیب تھی جس سے یہ نوجوان اتنی محبت کرتا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ میری نگینا کو مجھ سے چھینا گیا تھا، اس نے کڑوے لہجے میں کہا۔ اس بات کا صدمہ میری روح کو کھا گیا ہے، میں اندر ہی اندر جل رہا ہوں، اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہوں۔ مریم حیران تھی، کس نے مارا تھا تمہاری نگینا کو؟ لڑکے نے کچھ دیر اسے غور سے دیکھا، پھر بنا کچھ کہے اٹھ کر چلا گیا۔ میں پھر آؤں گا، یہ کہہ کر وہ رات کے اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ اگلے دن کرم دین چاچا مریم کے ابا کے پاس آئے۔ وہ کہنے لگے، چل آج سپیرا پورے گاؤں میں ناگ کو تلاش کرے گا، تجھے بھی یہ تماشا دیکھنا چاہیے۔ ابا پہلے تو انکار کرتے رہے، لیکن کرم دین چاچا نے ان کے کان میں کچھ کہا اور وہ فوراً تیار ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ابا اور کرم دین چاچا چلے گئے، لیکن جب لوٹے تو ابا بے چین تھے۔ وہ بڑبڑا رہے تھے، پورے گاؤں میں ڈھونڈ لیا لیکن وہ زخمی ناگ کہیں نہیں ملا۔ مریم سمجھ نہیں پائی کہ ابا اتنے پریشان کیوں ہیں، لیکن اگلے دن جو ہوا اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ چودھری اپنے ملازموں کے ساتھ ان کے دروازے پر کھڑا تھا، ساتھ میں ایک بوڑھا سپیرا بھی تھا۔ چودھری غصے سے گرجا،
फजलदीन, तूने उस नाग को इस घर में छुपा कर रखा है। करमदीन ने सब बता दिया है। अब्बा का सर झुका हुआ था। मैं कुछ नहीं जानता, उन्होंने धीरे से कहा। चौधरी हंस पड़ा। अगर मेरी बात सच निकली तो सजा के लिए तैयार रहना। तभी सपेरे की बीन गूंज उठी। अचानक दीवार के पास एक मोटा लंबा नाग दिखाई दिया। वो झाड़ियों के पीछे जाकर गायब हो गया। पूरा गांव उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो नहीं मिला। मरियम कांप रही थी। उसने अब्बा से पूछा, ये सब क्या हो रहा है अब्बा? चौधरी आपको इस तरह क्यों कह रहा था? अब्बा ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि मैं उसके बहुत से राज जानता हूँ। मरियम हक्का बक्का रह गई। तो क्या आप एक सपेरे थे? अब्बा ने सर झुका दिया। ये 20 साल पुरानी बात है, जब इस गांव में मेरी और उस चौधरी की बहुत चर्चा थी। मैं एक बहुत बड़ा सपेरा था, लेकिन फिर एक हादसे के बाद मैंने ये काम छोड़ दिया। हमारा गांव उस जगह पर था जहां रेत में दर्जनों सांप और नाग रेंगते हुए नजर आते थे। उस वक्त हवेली भी नई नई तामीर हुई थी, लेकिन हवेली के एक खुफिया कोने में एक नाग जोड़ी भी आबाद हो गई। वो दोनों अपनी दुनिया में मगन थे, न जाने वहाँ कौन सी तपस्या कर रहे थे। लेकिन हवेली के मालिकों ने उन्हें देख लिया। वो इस नाग जोड़े को जान से मारना चाहते थे, क्योंकि नाग का खौफ हर किसी इंसान के ज़हन पर था। मैं हर वक्त अपने अब्बा के साथ रहता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हवेली के मालिक ने अब्बा को बुलाया था। वो अब्बा से कहने लगे कि तुमने इस जोड़ी को ख़त्म करना है। अब्बा ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, हरगिज़ नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा। अगर एक नाग मरता है तो उसकी नागिन सदियों तक तुम्हारा पीछा करेगी, और अगर नागिन मरती है तो वो नाग तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कभी ना कभी लौट कर ज़रूर वापस आएगा। अब्बा ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो हवेली के मालिकों को भी शदीद गुस्सा आ गया। उस वक्त तो वो चुप हो गए, लेकिन मैं क्या जानता था कि शहर से वापस गांव की तरफ लौटते हुए हवेली के लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। वो मुझे हवेली ले गए और कहने लगे, तू भी अपने सपेरे बाप का बेटा है, अब यहाँ बीन बजा, हम भी देखते हैं कि वो नाग और नागिन कहाँ छुप कर बैठे हैं। अब्बा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। वो इस नाग जोड़े को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मुझे पकड़ लिया था और मैं उनकी बात मानने पर मजबूर था। उस रात एक बहुत ही खौफनाक कहानी रची गई। जैसे ही मैंने बीन बजानी शुरू की, वो दोनों झूमते हुए बाहर आ गए। वो बहुत कम उम्र और मासूम लग रहे थे। बहुत ही खूबसूरत सुनहरे रंग की वो नाग और नागिन की जोड़ी आज भी मेरी नजरों से ओझल नहीं हुई। मैं चुपचाप ये मंजर देख रहा था। जैसे ही मैंने इन्हें बाहर निकलते देखा, मैं फौरन ही वहाँ से रफू चक्कर हो गया। लेकिन मैं क्या जानता था कि उस रात वो नागिन जिंदगी की बाजी हार जाएगी। हवेली के मालिक के हुक्म पर उसके आदमियों ने उस नागिन को जान से मार डाला, और जबकि वो नाग अपनी जान बचाने के लिए न जाने कहाँ छुप गया था। अब हवेली में जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि नाग और नागिन की जोड़ी से हवेली पाक हो चुकी थी। अब उन्हें कोई खतरा नहीं था। फिर कई साल गुजर गए। अचानक अब्बा का इंतकाल हो गया। मैं अब भी यही काम कर रहा था, लेकिन एक दिन एक जहरीले नाग ने मुझे डस लिया। मैं वहीं पर गिर पड़ा। शुक्र था कि उस नाग का जहर मेरे पूरे बदन में नहीं फैला, सिर्फ मेरी टांगों को मुतासिर किया, और आज मैं बिस्तर पर मजबूर बनकर लेटा हुआ हूँ। लेकिन आज वो चौधरी जो घर आया है, वो समझ गया था कि हमारे घर में वो नाग मौजूद है। उसकी आहटें मैं भी पहचानने लगा था। जब भी तुम मुझसे पूछती कि अब्बा ज़मीन पर ये निशान कैसे हैं, या जब मैं तुमसे पूछता कि ये निशान कहाँ से आए, तो तुम इस बात से इनकार कर देती थी। तुम जानती ही नहीं थी कि ये निशान कैसे हैं, लेकिन मैं उसकी आहटें और उसके निशान अच्छी तरह पहचानने लगा था। वो नाग हमारे ही घर में था। फिर मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश की, और इस कोशिश में किसी को भी ये बात नहीं बताई। मैं उसे 2-3 बार दीवार पर रेंगते देख चुका था, लेकिन आज वो यहाँ से भाग गया है। न जाने अब वो मेरा क्या हाल करेगा। मुझे डर है कि कहीं लोग अब उसे भी ना मार डालें, लेकिन वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर होकर आया है। हो सकता है कि अपनी ताकत से इस गांव में तबाही मचा दे। जब अब्बा ने मरियम को ये कहानी सुनाई तो अचानक वो चौधरी दोबारा आ गया।
और चिल्लाते हुए बोला कि एक बार फिर वो नाग बच निकलने में कामयाब हो गया है, लेकिन हम उसे तलाश करके ही रहेंगे। तू पहले की तरह उस नाग जोड़ी की जान बचाना चाहता है। तू ही असल में हमारा दुश्मन है। तभी तो तूने उस नाग को अपने घर में छुपा लिया था। अब्बा ने उसकी बात का जवाब देना भी मुनासिब ना समझा। वो भौंकता हुआ गुस्से से खुद ही वहाँ से चला गया। मैं अब्बा को तसल्ली दे रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब्बा के चेहरे पर भी कोई फिक्र और कोई गम नहीं था। रात को मैं सिलाई मशीन पर बैठी अपने कपड़े सिल रही थी जब अचानक मुझे अपने पीछे आहट सी महसूस हुई। मैंने देखा सब्ज आंखों वाला वो खूबसूरत नौजवान मेरे पीछे ही बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हैरान होकर उससे कहने लगी। वो कहने लगा, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम ये गांव छोड़कर जा रहे हो? उसने कहा, हाँ, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा इंतकाम पूरा हो चुका है। सुबह तक उस हवेली में हंगामा मचा होगा, लेकिन क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगी कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे सामने बार बार क्यों आता रहा? उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं उसे कहना चाहती थी कि ये मेरे दिल की आवाज थी। वो बार बार मेरे सामने आ रहा था क्योंकि सच में ही मैं दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करने लगी थी। फिर उसने मुझे गौर से देखा और कहने लगा, तुम अपने अब्बा से पूछ लेना मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। वो मुझे ना सिर्फ जानते हैं बल्कि पहचानते भी हैं। अचानक उसकी सब्ज आंखें चमकने लगीं। इसके धोखे में मत आओ बेटी, ये इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है। अचानक मेरे पीछे अब्बा की आवाज सुनाई दी। मैं खौफजदा होकर पलटी तो अब्बा मेरे पीछे ही खड़े थे। तभी मैं उसकी सब्ज चमकती आंखों को देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखें रंग बदल रही थीं, लेकिन वो अब्बा को मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। तभी वो अब्बा के सामने जाकर खड़ा हुआ और कहने लगा, फजलदीन, तूने पहले भी मेरी जान बचाने की कोशिश की और आज भी तूने मेरी जान बचाई। इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन तू मेरी नागिन को ना बचा सका। तेरी वजह से वो मर गई। लेकिन ये बाद में मुझे पता चला कि तूने उसे बचाने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने अपना जहर तेरे जिस्म में छोड़ दिया था, लेकिन तू बच गया। ये तेरी खुशनसीबी थी। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। तेरी ये बेटी बहुत ही अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि इसकी किस्मत इसी की जैसी खूबसूरत हो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका अजर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जाते जाते तुम्हारे घर एक चीज छोड़कर जा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए बेहतरीन साबित होगी। ये कहकर उसने एक आखिरी नजर मुझ पर डाली और अचानक ही नाग बनकर उस घर से इस तरह रेंगता हुआ चला गया जैसे वो कभी आया ही नहीं था। मैं साकिन खड़ी थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे सामने आने वाला वो खूबसूरत नौजवान जो हमारे ही घर में हर वक्त मौजूद रहता था, एक इच्छाधारी नाग था। मैं अभी तक सदमे की कैफियत में खड़ी थी। अब्बा ने ही मुझे कंधे से हिलाकर अपनी तरफ मतवज्जे किया और कहने लगे, इसने अपना बदला ले लिया है। अब न जाने सुबह कैसी कियामत आने वाली है, ये तो सुबह ही पता चलेगा। पूरी रात हम बाप बेटी बेचैनी से जागते रहे, लेकिन सुबह जो खबर मिली उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए थे। हवेली का मालिक मर गया था। उसे किसी जहरीले नाग ने डस लिया था। ये खबर सबके लिए बहुत बड़ी थी। फिर उस दिन अब्बा कहने लगे, हम ये गांव छोड़कर चलते हैं, इससे पहले कि लोग इल्जाम हमारी तरफ लगाएं। बाप परेशान थे। मैं जल्दी जल्दी घर का सारा सामान समेटने लगी, लेकिन अचानक मेरी नजर एक चमकती हुई खूबसूरत चीज पर पड़ी। मैंने जैसे ही उसे उठाकर देखा, अब्बा उसे देखते ही पहचान गए। ये हीरा है जो वो नाग हमारे लिए छोड़ कर गया है। मुझे यकीन नहीं हुआ। अब्बा ने संभाल कर उसे अपनी हथेली पर रखा और फिर उसे एक सफेद कपड़े में लपेट लिया। हमने ये गांव छोड़ दिया। शहर में आकर हमने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। उस नाग के दिए हुए हीरे ने हमारी तो जिंदगी ही बदल दी। उसकी कीमत करोड़ों में थी। अब्बा का इलाज हो गया और रूहेल अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करने लगा, जबकि मैंने अपना बहुत बड़ा बुटीक खोल लिया। अब वो शहर का मशहूर और मारूफ बुटीक
मेरे नाम पर था। वो ये नहीं कह सकता था कि ये लड़की कभी एक गरीब दर्शन थी जो चंद पैसों के लिए मारी मारी फिरती थी। अब्बा मुझसे कहते, अब तू भी शादी कर ले बेटी, अपनी जिंदगी का नया आगाज कर। लेकिन मैं अब्बा को कैसे कहती कि उस हरी आंखों वाले नाग ने मेरा दिल अपने कब्जे में कर लिया था। भले ही वो एक नाग था, लेकिन वो मेरी जिंदगी में आने वाला पहला शख्स था।